Ladies and gentlemen, today we have our session on exam tips, how to get maximum marks. Now, how to get maximum marks, we have to understand the formula of triple F via triple P. Please write a comment. Triple F via triple P. Triple F means fear, face, flee. And the second is plan, prepare, present. If I am audible and visible in SAFE 5, so please like this video broadcast, share it in 3 WhatsApp groups as well as SAFE 2. So today we have our exam day. I am still supporting you. You should be thankful to me that even on exam day, I extend my support. Extend. So I extend my support. This extension of support must be reciprocated as for gratitude. Gratitude is the hallmark of greatness, because great people are grateful. Can you write so many comments? Great people are grateful. If I am audible and visible, so please like this video broadcast and share it in 3 WhatsApp groups and SAFE 2. So I saw the comment of Rehan Ali, triple F via triple P. And then I said, great people are grateful. Can you write this? I am great and I will be grateful. I am great and I will be grateful. Thank you, Rehan Ali, for sharing the link. And now let us discuss the formula of triple F via triple P. I extend my support even on your exam day. So you people should be grateful, because great people are grateful. Gratitude is the hallmark of greatness. So great people are Khan ka Nazara. You made a spelling mistake. Amjad Sahil Khan, yes, correct. Great people are grateful. Great and grateful. Because when you are great, you are grateful. Gratitude. Gratitude is a very, excellent characteristic. I was in Spain in the University of Salamanca, which I taught in Spanish language and culture course, and I met for the first time some Americans and Germans and other people. They would be very grateful, very thankful for small things. Thank you so much, so nice of you, for very, very small things. Small people, they are not grateful. Great people, they are grateful. This I have seen, I have observed it in my life. बंदा जितना बड़ा होता है इतना ज़्यादा वो शुक्रिया अदा करता है, जितना छोटा होता है वो इग्नोर करता है. So to get maximum marks, एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे? ट्रिपल F via triple P. This is the formula. Please write it on your study wall, study table with the red color. Triple F via triple P. Write it here as a comment. Triple F via triple P. Fear is there. Fear is part of life. Remember, fear is there.
फियर इज देयर। मतलब मुझे भी अभी भी डर है कि यार ये मेरा मोबाइल गिर न जाए, कोई लाइट न चली जाए, कोई इंटरनेट ब्लॉक ना हो जाए। फियर इज देयर, ऑलवेज फियर विल बी देयर। ये जितने भी माफिया है, माफिया कल्ट्स, CULTS, कल्ट्स, कल्ट माफिया, ये आपके फियर के साथ खेलते हैं। मतलब दुनिया में फियर जो है बहुत बड़ा कारोबार है। आपको डराओ और अपना मतलब निकालो। इंसान बड़ी जल्दी डर जाता है, तो फियर, जो डर गया वो मर गया। सो ऑलवेज देयर विल बी फियर, ऑलवेज। सब लोगों को फियर होता है। बाइडन को भी फियर है, इमरान खान को भी फियर है, नवाज शरीफ को भी फियर है। बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा बंदा, वो फियर का थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को फियर ये होता है कि यार चाइना हमें खा ना जाए, तो उसको बहुत बड़ा फियर है चाइना का। आम गरीब बंदे को जो है ना, मुर्गी का डर है कि मेरा मुर्गी अगर अंडा नहीं देगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फियर का लेवल क्या है, लेकिन फियर है, लाइफ में फियर जरूर है। सो फियर इज देयर। सो वी हैव ट्रिपल F, फियर, फेस, फ्ली। जो भाग गया दैट इज आल्सो विक्टोरियस। मतलब फियर के अंडर आ के मर मर के कचूमर बनने से बेहतर है बंदा फ्ली, रन। ग्रेट लोग क्या होते हैं, फेस। लेकिन फ्ली भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो ट्रिपल F मीन्स फियर, फेस, फ्ली। फ्ली मीन्स रन अवे। So you have fear, you have two options: face it. Second is run away, flee. मतलब रनिंग जो है वो भी बड़ा कमाल है। ऐसा नहीं कि उधर ही कोई ऊपर तुम्हें कुचल ले या तुम्हें क्रश करे। तो क्रश होने से बेहतर है कि बंदा भाग जाए। In Pashto we have a proverb that Tekhtahum Nima Gatada. Tekhtahum je Nima Gatada. मतलब भागना भी हाफ विक्ट्री है। इफ यू रन अवे स्टिल यू आर विक्टोरियस। उधर ही रहोगे मर जाओगे। सो दैट इज नॉट विजडम। विजडम ये है कि या उसको फेस करो या छोड़ दो। नाउ व्हेन यू अडॉप्ट the second option, which is face, so we have triple P. Triple P means plan, prepare, present. प्लान करो अपनी तैयारी को, अपनी चीज़ को प्लान करो कि भाई मैंने ये करना है। संडे को मेरे एग्जाम है, तो क्या आपने इसको प्लान किया था, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, कैसे करना है। प्लान होता है इन द माइंड। जिस तरह का फियर माइंड में होता है, डेंजर रियल होता है। डेंजर इज रियल, फियर इज जस्ट इन द माइंड। फियर जहन में होता है, डेंजर तो फिर डेंजर है, फिर तो खतरनाक है। मतलब लोग आपको कहते हैं जी फियरलेस बन जाओ, खौफ न करो। यार जब डेंजर है तो मैं क्यों फियर न करूं? एग्जाम है तो मुझे फियर करना चाहिए। फियर कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ क्या है? फोबिया। जब वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। अब हर वक्त खौफज़दा रहते हैं, मरने से डरते हैं, एग्ज़ाम से डरते हैं, ऊंची जगहों से डरते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया आपको होता है, छोटे छोटे जगहों में जाके आप वहाँ से आपको डर लगता है। अगर ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए फिर तो ख़तरनाक है। हर वक्त डरा डरा, दैट इज़ कॉल्ड फोबिया। फियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हर बंदे को फियर होता है। फियर के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं। फियर इज़ द चैलेंज। फियर इज़ योर नर्वस सिस्टम। बट द मोर यू आर अलर्ट, द मोर यू आर कॉन्शियस, द मोर यू विल बी फियरफुल। जितना बंदा अवेयर होता है, कॉन्शियस होता है, इतना वो डरता है।
तो फियर इज़ अ बिग बिजनेस इन द वर्ल्ड। फियर जो है दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार है। आपको डराते हैं, अच्छा आपको अगर ये दाना निकल आए और ये दाना थोड़ा सा बढ़ जाए और दाना जो है वो दर्द कर रहा है तो ये कैंसर है, आ जाओ मेरे पास, डॉक्टर के पास। तो सेल जो बुक जो हॉट इज सेलिंग लाइक हॉट केक, वो एक किताब होती थी पहले, मौत का मंजर, मौत के बाद क्या होगा, ओ जी मौत। वो किताब बेचने के लिए उसने जो है ना ख़तरनाक चीज़ें उसमें लिखी थी कि भाई मरोगे तो ये होगा तो वो होगा, एक इजदहा तुम्हें खाएगा तो तुम 50 गज ज़मीन में जाओगे। तो वो इमेजिनेशन ऐसे पिक्चर करते चीज़ों को कि बंदा जो है ना उसमें आ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई कोई बंदा जो है आपकी फियर सेंस के साथ खेल तो नहीं रहा, आपको खामखा तो नहीं डरा रहा अपनी मर्जी के लिए। अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ऐसे लोगों से डरो जो आपको खामखा डराते हैं। सो व्हेन यू हैव एग्जाम, दिस इज नेचुरल दैट यू मस्ट हैव सम फियर। एंड टुडे यू हैव योर at 9 p.m. after 15 minutes you will be having your English grammar composition, vocabulary and composition exam. There are 8 questions, so you have to do 5 questions, minimum 5 questions. Each question carries 20 marks, so you can have any of the 5 questions out of total 8. 1 hour is the time, so plan your exam well. Go through quickly through all the questions. Which question will consume less time and you can present your ideas more professionally. जैसे आप पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन पे मत लगो, पूरा पेपर पढ़ो। दिस इज टिप फॉर मार्क्स। मार्क्स वो लोग लेते हैं जो पूरे पेपर को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, तमाम क्वेश्चंस को। वो कॉन्शियस हो जाता है कि यार मैंने एक क्वेश्चन नहीं करना, मैंने 5 करने हैं, तो फिर पहले वाले को जल्दी जल्दी निपटा के सेकंड पे जाता है, थर्ड पे जाता है, फोर्थ पे जाता है। अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन बेहतरीन करें और 3 क्वेश्चन आपसे रह जाए तो क्या फ़ायदा। सारा गेम तो मार्क्स का है। यू हैव टू गेट मार्क्स, मार्क्स आपने लेने हैं। सो यू शुड बी इंटेलिजेंट। आपने कोई थीसिस नहीं निकला, ना आपने कोई PhD की डिग्री लेनी है। एग्जामिनर ना आपको कोई डिग्री देता है, ना कोई शाबाश देता है, आपको मार्क्स देता है। तो मार्क्स लेने के लिए यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ताकि किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले लूँ। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्विक, फास्ट। तो जैसे पेपर आप देखते हैं, तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ें, फिर उसमें से वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें विच इज़ द ईजीएस्ट। आपने इसको एग्जैक्ट तैयारी की है, आपने एग्जैक्ट उसको पढ़ा है, आपको आंसर बिल्कुल ज़बानी याद है, उधर से शुरू करो। एंड देन गो फॉर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये मेरा अपना तरीक़ाकार है। कभी कभी मुझे याद है कि एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था, तो सिर्फ आखिरी 3 मिनट रहते थे, 3 मिनट, क्योंकि मैंने पहले 4 क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त किए, आखिर में 3 मिनट है। तो 3 मिनट जो है उसमें भी मैं कुछ लाइंस जल्दी लिख लाऊं। ऐसे एग्जामिनर आता है, मैं थोड़ा सा सर इधर कर देता हूँ कि मुझे न देख ले, एग्जामिनर दूसरे लाइन पे चला जाता है। तो एग्जामिनर के आते आते फिर जो है मुझे 2 मिनट मिलते हैं। फिर वो कहते हैं यार बस करो, दे दो। मैं कहते सर देता हूँ, 1 मिनट प्लीज़। तो मैं 2-3 पैराग्राफ डाल लेता हूँ। मार्क्स है, मार्क्स तो आपने लेने हैं। एग्जामिनर को भी फील होता है कि यार बंदे ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं हो सका, उससे नॉलेज है इसके पास, पूरा इसने प्रेजेंट नहीं किया, मार्क्स फिर वो देता है। सो इट मीन्स दैट यू हैव टू टच द क्वेश्चन को आपने टच ज़रूर करना है ताकि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। अगर 20 मार्क्स से 5 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, लेकिन कुछ तो मिलेगा। तो आइडियलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल बने, सो देन यू विल बी गेटिंग more and more marks. Plan, present, prepare, present. अगर आप तैयार है तो जब हुस्न है तो निज़ाकत आ ही जाती है। जब बंदा तैयार होता है
तो ऑटोमेटिकली फिर आप प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होता है। आपके घर मेहमान आते हैं और आप तैयार है, आपका फ्रिज भरा हुआ है, आपके घर में गैस मौजूद है, बर्तन मौजूद है, बस जी आप बेहतरीन किस्म की चीज़ फ्रिज से निकाल के बना के उसको एग्जामिनर को या मेहमान को प्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा है, माइंड में कुछ है ही नहीं, ना आपने कोई प्लानिंग की है, ना प्रिपरेशन की है, तो एग्ज़ाम के अंदर क्या करोगे, क्या प्रेजेंटेशन करोगे, कुछ है ही नहीं। सो कॉज एंड इफेक्ट, अगर आपने कॉज क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी इफेक्ट, एंड इफेक्ट विल बी द हाईएस्ट मार्क्स। Similarly, you have 5 questions in current affairs at 10 p.m. Basically, these are just global issues. You have to define, describe, give details, explain, recommend, conclude all the global issues that we have discussed throughout this month. So that is that is a very simple paper, but you have to write at least 3 or maximum 5 paragraphs on each global issue, and you will be seeing the paper there. Again, you will be having choice, so go for the topic that you are well prepared, because you have planned that topic. No plagiarism. आज मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई। एक बंदे ने आपके एक दोस्त को पकड़ लिया, उसने पूरा जो डेली हमारा राइटिंग प्रैक्टिस है पूरी चीज़ उधर से उठा के इधर डाल दिया। तो लोग जो है कुछ कहते नहीं है पाकिस्तानी लोग, लेकिन नज़र उनकी बड़ी, मेरी ज़िंदगी का एक विजडम जो है, याद रखना कि लोग खुद कुछ नहीं करते, दूसरे पे ज़रूर नज़र रखते हैं, ताड़ने में बड़े तेज़ है। ठीक है ना, दूसरों की चीज़ें उनको नज़र आती है, खुद नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरों की ज़रूर नज़र आती है। तो ये भी एक स्किल है। दिस इज़ आल्सो अ स्किल कि कम से कम आपको दूसरे की चीज़ तो नज़र आ जाए। मैं भी बड़ा हैरान था कि बंदे ने बड़ा अच्छा लिखा है, हालांकि मैंने उसको कहा भी कि इस तरह मत लिखा करो, ये एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं है। वैसे फ़िलासफ़ी के लिए आप लिखते हैं, अच्छी बात है, या अखबार में लिखते हैं, या वैसे कोई ड्रामाबाजी करते हैं, एग्ज़ाम में इस तरह की लिखाई नहीं होती। ये तो शुक्र है कि मैंने उसको 20 में कोई 15 या कोई 18 मार्क्स नहीं दिए थे। उसने पूरा ब्लॉक उठा के उधर डाल दिया, कॉपी पेस्ट किया, सिंपल, और उसे मेरा माई असाइनमेंट ऊपर बड़ा बड़ा लिख भी दिया। तो ये झूठे लोग जो है ये ठीक नहीं होते, लॉन्ग रन में पकड़े जाते हैं। सो बी ट्रू पर्सन्स, जो आपके माइंड में है वही लिखो। आता है नहीं आता छोड़ो, अपनी रियलिटी को फेस करो। नहीं आता तो ये भी आपकी रियलिटी है, आता है तो ये भी रियलिटी है, दोनों रियलिटीज़ है। लेकिन नहीं आता और उसको तुम आता बनाते हो तो ये गलत है। नहीं आता करे, इंडोर्स करे, रिकग्नाइज करे, एग्री हो जाए अपने आप के साथ, यार नहीं आता। मतलब नींद, जब आपको रात को नींद नहीं आती तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप नींद को कही जी नहीं आती तो मत आओ, क्या मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, लड़ना पड़ना मेरे साथ तुम्हारे साथ नहीं है। जब लड़ना छोड़ोगे तो नींद आ जाएगी। तो रियलिटी को एक्सेप्ट किया करें, ये बहुत बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि आप एक रियलिटी को एक्सेप्ट करें। नहीं आती नींद, नहीं आती, आती है तो आती है। भूख लगी है तो खाओ, नहीं लगी तो खामखा मत टोंसो, अपने ऊपर फोर्स मत करो। जो रियलिटी है, जो नेचुरल है, दैट इज़ योर रियलिटी, वही आपकी रियलिटी है। खामखा आर्टिफिशियल तरीके से लोगों को इम्प्रेस करना, ये आप खुद भी अंदर से फील करते हैं बंदा क्रिमिनल, कि यार ये मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। तो ये हो गई कहानी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ गो अहेड। आई हैव गिवन यू द फार्मूला ऑफ FFF via PP. Fear is natural. Either flee, run away, but permanently run away. अगर आपको CSS से वाकई फोबिया हो जाता है कि मैंने CSS में नहीं कर सकता, मुझे नहीं है, ये मेरा, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरा जैसा बोतल खान जो है वो CSP नहीं बन सकता, छोड़ दो, कोई और काम करो। फ्ली, रन अवे। अगर आप में जज्बा है कि नहीं यार मैंने फेस करना है, जब फेस करना है तो फिर फेस करो उसको, फिर डट जाओ, डिटरमिन। बेशक आप नालायक है, कुछ नहीं आता,
लेकिन यू आर फेसिंग इट, आप फेस कर रहे हैं। अब छोटा सा एग्जाम हमारा वीकली एग्जाम है, मंथली एग्जाम है, क्या है ये आप नहीं कर सकते, तो आप ओरिजिनल एग्जाम को क्या करोगे? मतलब एक छोटा सा रियलिटी चेक है, ये आपसे नहीं होता और आप इस ख्वाब खरगोश में है कि जी मैं CSP बनूंगा। तो फियर, फेस, फ्ली। अगर आपने कहा कि मैंने रन अवे नहीं करना, मैंने फेस करना है, देन प्लान, प्रिपेयर, प्रेजेंट, फिर करो, काम करो। ये डानवा डोल किस्म की चीज़ जी, बस जी देखते हैं क्या होता है, वो ट्राई कर लेते जी, होगा तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये अपने आप को ज़ाया करने वाली बात है। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। आपकी 3-4 साल जवानी के इन चक्कर में गुजर जाते हैं, तो ना आप कोई और काम कर लेते। हो सकता है कोई आप कोई अच्छा मिस्त्री बन जाए, कोई ड्राइवर बन जाए, कोई दुबई जाए, कोई लंदन जाए, कोई जो है और काम करे। खामखा CSS के चक्करों में आपका वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। अगर करना है तो फिर डिटरमिन होके करो, ठीक है। हो सकता है कोई अच्छा टीचर बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए, फिलासफर बन जाए, इंटेलेक्चुअल बन जाए, राइटर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। तो ये है कहानी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। एज आई सेड, देयर आर 8 questions in grammar, vocabulary and composition. Question number 1 is a little long, but it is very easy. Please write number and there are A, B, C, D. Write A, 1, 2, 3, correct answer, filling the blanks. Do not write the whole sentence. वो लगता लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है। And then you have some definitions, 2 paragraphs writing, and some idioms and other things that we have shared with you in the SAFE 5. तो 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपने 5 करने हैं। वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसमें अब बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये मार्क्स का गेम है। इंटेलिजेंट बनो, इंटेलेक्चुअल मत बनो, बहुत बड़ा प्रोफेसर मत बनो, मार्क्स लिया करो। दैट इज my pragmatic, practicable suggestion. Do you have some other question? Any question? So as Zartasha Khan says, either do it wholeheartedly or don't do it. Don't try. Don't try. Try मत करे, या करे या ना करे, इसमें ज़्यादा सुकून है। ट्राई शायद से कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी मेंटेलिटी क्या है, बस जी देखते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये गलत अप्रोच है। जब आपने डिटरमिन किया है दैट आई हैव टू डू इट, देन डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंपोजिशन पेपर, यू हैव टू राइट A, then 1, 2, 3, 4, 5, B, 1, 2, 3, 4, 5, and only the correct answer. If you know the source of such questions, please do not go to the source. Correct, write your own answers. Later on, after the exam, you can go and you can see the source of the questions. Because most of the questions are from the SAFE 5, which we have already discussed, but we have now made it part of the examination. So remember, 555 via P. Fear is must. Face it. Be a true person and face your fear. Be bold. Be brave. ब्रेवरी ये नहीं है कि भाई जी मैं ब्रेव हूँ, मैंने जो है ना अपने बहन मोबाइल पे बात कर रही थी तो मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया, जी मैं बड़ा बहादुर हूँ। एग्ज़ाम को फेस करो, अपनी ड्यूटी करो, मार्क्स ले लो, बड़े बड़े काम करो, कोई नाम बनाओ। ब्रेवरी ये है। बुज़दिली, बेगैरत ये है कि आप एग्ज़ाम जो है उसको फेस नहीं करते। आप बुज़दिल है, आप बेगैरत है, आप में गैरत ही नहीं है, आप में ऑनर नहीं है, आप एक कोर्स का हिस्सा है और आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो ये बुज़दिली है।
ब्रेव बंदा ये है कि वो चीज़ों को फेस करता है। अब वो चीज़ क्या है, ये फजूल किस्म के ऑनर हमारे बने हुए हैं। और जी हम फलान मेरा ऑनरेबल काम मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये तमगा लिया। यार अपनी ड्यूटी सही करो। सो दैट इज़ योर bravery. So time is over. In coming 2 minutes, you will be having your paper. Be brave, be bold, have your honor, have your responsibility, have your response, be responsible people, and this way we will be having more and more accomplishments. All the best. If there is any problem, send me WhatsApp message. No discussion in examination hall. After 1 hour, all the comments will be blocked. Then you will be unable to comment further. So before 1 hour is finished, please upload your answers. Reply to your first question so that all your answers are at the same place.